સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. एक तरफ कुरुक्षेत्र ने कर्णभूमि एक बाजू, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજુ. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજુ. સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ. अमरोली परिवार की ओर से परम आदरणीय, परम स्नेही અને પ્રાતઃ સ્મરણીય एवं आदरणीय श्री गोवर्धन भाई झड़पिया साहब, हमारे पूरे JJS आर्ट्स एंड पीएसआई कॉमर्स कॉलेज अमरोली, जीवन ज्योत ट्रस्ट अमरोली और हमारे 3000 से ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेट और जो भी हमारे यूट्यूब और इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर जो लोग देख रहे हैं, मैं सभी को अमरोली कॉलेज परिवार की ओर से नमस्कार. और ज़्यादा नहीं कहते हुए जितने भी हमारे पार्टिसिपेट उसका भी हम स्वागत करते हैं. ऐसे ही आप हमारे 13 वेबिनार है, ऐसे भी हम और 13 करेंगे, इसी में आप जोड़ते रहेंगे. इसी के लिए सबका शुक्रिया और फिर से परम आदरणीय गोवर्धन भाई झड़पिया साहब सभी को वंदे मातरम और सबका शुक्रिया. Good morning, one and all. I, Dr. Chirag Sitpuria, welcome you all in the 13th webinar on Youth and Nation. We are happy to have with us Shri Golden Bhai Jarofia ji. Shri Golden Bhai Jarofia ji is a state vice president BJP Gujarat. He was a leader in Vishwa Hindu Parishad.
VHP, for 15 years before joining Bharatiya Janata Party. He served as a General Secretary for BJP in Ahmedabad city and was elected twice as a member of Gujarat Legislative Assembly during 1995 to 1997 and 1998 to 2002. He was a Minister of State for Home and Security and Police Housing Independent Charge during 2001-2002 in the state government of Gujarat led by Sri Narendra Modi ji. He was a party in charge in Uttar Pradesh during Lok Sabha election 2019. By education, he done BSc, Master of Public Administration, Diploma in Marketing Management. We welcome you once again, sir. Managed by Jeevan Jyot Trust and JJ Arts and HP Desai Commerce College. We congratulate Modi 2.0 government for successfully completion of 1 year, despite of many challenges. Structure reforms during 2.0 has fulfilled Indian decade-long aspirants and dreams. Welcome you all, sir. Over to you, sir. जी नमस्कार। अमरेली कॉलेज सूरत और उसके साथ जुड़े हुए सभी अपने कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल आदरणीय किशोर सिंह जी चावड़ा जी, भाई श्री चिराग भाई सोडा जी, आप सभी को इस वेबिनार में खास करके आज का जो विषय है यूथ और नेशन, युवा और राष्ट्र, उस विषय में भारत का राष्ट्र जो है इसके बारे में और युवाओं के बारे में आज के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे युवा देश है पूरी दुनिया में। हमारी औसत आयु 29 इयर्स है, जबकि यूरोप वगैरह की, यूरोप की 45 है, यूएसए की 37 है और जापान की औसत आयु 48 है। वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, सो द यूथ हैज गॉट द इम्पोर्टेंस। सबसे ज्यादा महत्व अगर है तो युवाओं का भारत में है। और करीबन 50 करोड़ हमारी आबादी ऐसी है जिसकी उम्र 25 साल से भी कम है। मतलब वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन दिस ग्लोब। और इसके लिए देश और युवा, इस विषय को आज खास करके वेबिनार का तो इसलिए एक नई पहचान हो गई हमारी संपर्क व्यवस्था की कोरोना को चलते, क्योंकि कोरोना के चलते हम लोग एक दूसरे के नजदीक कैसे रहें, तो विज्ञान का जो आविष्कार है, टेक्नोलॉजी का आविष्कार है, उसके चलते हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो ये अति प्राचीन राष्ट्र, करीबन 8000 साल से भी ज्यादा हमारा इतिहास हमारे पास उपलब्ध है और 2500 साल का पुराना लिखित में हमारे पास साहित्य है, इतिहास है। राष्ट्र के बारे में एक अवधारणा है। हम लोग ऐसा समझते हैं कि लोग जहां बसते हैं और भूमि जिसमें बसते हैं वो राष्ट्र होता है। वैसे राष्ट्र नहीं होता। राष्ट्र की भी जैसे शरीर में आत्मा होती है, वैसे राष्ट्र की भी एक चीती है, आत्मा है। उसकी परंपरा, उसके संस्कार, उसके महापुरुष, उसके मान बिंदु, ये सारी अविरत धाराएं चलती रहती है, तभी तो राष्ट्र बनता है। और राष्ट्र की इस अवधारणा में पूरी दुनिया में अगर कोई अपनी भूमि को मां कहता हो तो ये मेरा भारत है। हम कहते हैं माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः। ये भूमि हमारी माँ है और हम उसके बेटे हैं, ऐसा भाव। हॉलैंड, पोलैंड, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, कहीं भी जाइए, कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभूमि को मां नहीं कहता। हमारा भारत, हमारे लोग हमारी मातृभूमि को मां कहता है। इसलिए राष्ट्र के बारे में जो हमारी अवधारणाएं हैं, वो अवधारणा आजकल से नहीं है। यहां आदि अनादि काल से, पृथ्वी के प्रादुर्भाव से भारतीय आध्यात्म की जो ऊंचाइयां पूरी दुनिया में जो भारत में है, वो आध्यात्मिक आदर्श, आत्मा की अमरता, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अपने ज्ञान के अनुभव से जो प्राप्त हुआ, उसके रचित वेदों की रचना,
जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन व्यवहार में लाने के लिए उपनिषदों की रचना, और यहाँ जो हमारे शास्त्र वगैरह बने हैं वो इतिहास के पन्नों पे अमर है। ऐसे भागवत, गीता, रामचरितमानस, बहुत सारा आध्यात्म का एक बहुत उच्च आदर्श हमारी वेदों की रचना से शुरू हुआ है। जहां तक देश की स्वाभिमान का सवाल है, हमारी भगवत गीता कहती भी है कि त्यक्त्वा हृदय दुर्बल्यम उत्तिष्ठ परंतप, हृदय की दुर्बलता को छोड़ के खड़ा हो जा। मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ। अहम त्वाम सर्वे है पापे भी विमुच्यामि, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त करूंगा। ऐसे कहने वाले कृष्ण भी इस धरती पर यहाँ जन्म लिए। ऐसी प्रकृति की पूजा, चाहे पर्वत हो, नदियां हो, आजकल जो जलवायु परिवर्तन की हम लोग बात कर रहे हैं, विश्व ने प्रकृति का शोषण किया है। आज की सारी समस्याओं का अगर कोई कारण है तो मनुष्यों ने जल, जमीन, जंगल, जानवर, इनका, प्रकृति का इतना शोषण किया है। हमारी संस्कृति रही है दोहन की, जो भारतीय संस्कृति रही है। हमने 2015 में गुजरात में एक ग्लोबल समिट था, उसमें भूटान के प्रधानमंत्री आए थे। मैं उनका 2 शब्द भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि देश के बारे में उन्होंने क्या कहा। बहुत सारे लोग, करीबन 100 से ज्यादा देश के लोग मंच पे बैठे थे। वर्ल्ड बैंक के जनरल मैनेजर, फिनांस के, ब्रिटेन के, अमेरिका के, बहुत सारे दुनिया के 104 देशों के लोग वो खड़े हुए अपनी वेशभूषा में, अपनी परंपरा में। जैसे हमारा वैष्णव लोग पहनते हैं ना, ऊपर वाला कुर्ता जैसा। उन्होंने खड़ा होकर कहा कि आई एम कमिंग फ्रॉम ए वेरी स्मॉल कंट्री, मैं एक बहुत बड़े छोटे से देश से आ रहा हूं। एंड द टोटल इनकम ऑफ माई कंट्री इज लेसर देन यू पीपल इंडिविजुअली सिटिंग हियर। वहां अदानी भी थे, अंबानी भी थे, रुइया भी थे, द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द ग्लोब थे। उनके बीच उन्होंने कहा कि द टोटल इनकम ऑफ माई country is lesser than you people individually sitting here, but the half of my country is covered with the forest land. मेरा आधा देश जंगलों से आच्छादित है। We are drinking sparkle water flowing from the mountain. पर्वत से बहता हुआ मिनरल वाटर हम लोग पीते हैं। Our agriculture is 100% organic. हमारी कृषि उत्पाद पूरा ऑर्गेनिक है। Our education is 100% free. Our medical facilities are 100% free. You are drinking mineral waters made in a machine, and we are drinking mineral waters flowing from the mountain. You all are invited to help us. आप सब लोग हमें भूटान में मदद करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, बट विदाउट डिस्टर्बिंग माई इकोलॉजी। मेरे पर्यावरण को डिस्टर्ब किए बगैर अगर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करना है तो आइए। ये देश की भूमिका है। भारत भी आदि अनादिकाल से पृथ्वी के प्रादुर्भाव से हमारा प्रकृति के साथ, हम पेड़ की पूजा, पीपल की पूजा करते हैं, उसका मतलब है प्रकृति की पूजा। हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हम एवरी क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, जो भी है जड़ जड़ चेतन, सबकी पूजा करने की भाव ये भारत की मातृभूमि में है। अगर भारत को जानना है, आजकल हम लोग योग के बारे में, भारत का बहुत बड़ा प्रदान है। आज जो कोरोना की महामारी हो या बाकी अन्य जो मेडिकल साइंस जो कहता है, उसमें आयुर्वेद की आदरणीय नरेंद्र भाई ने आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है, उसके पीछे भारत का अध्यात्म है, उसके पीछे भारत का आयुर्वेद है। चरक से लेके धन्वंतरी से लेके यहाँ की जो हमारे पास जो था,
वो हमने गंवा दिया। मतलब हमें जो चाहिए था कि हम लोग हमारी परंपरा को बनाए रखें, हम बना नहीं रखे। और योग की बात जहां तक हम लोग करते हैं, तो शरीर का योग तो हम लोग सब जानते हैं, बाबा रामदेव जी कहते हैं, श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं। योग पूरी दुनिया में करीबन 21 जून को इस महीने में योग दिन होगा। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विश्व ने इस योग दिवस को स्वीकार किया। लेकिन ये योग के बारे में मैं आपको 2 शब्द कहना चाहूंगा, ये कहां से आया। तो आपने भगवत गीता में सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तानहम अव्ययम। यह अविनाशी योग मैंने कल्प के आरंभ में सूर्य को कहा था। विवस्तवान मनवे प्राहु, सूर्य ने मनु को कहा। मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। हमने उसका ऐसे भावार्थ निकाला कि वो मनु भगवान को कहा, इक्ष्वाकु राजा को कहा, ऐसा नहीं है। ये मन में स्फुरित हुआ। इक्ष्वाकु मतलब इच्छा हुई, और विवस्तवान मतलब चेतना जो शरीर में प्रकट हुई, वो भारत की सही आध्यात्म वही है। और एवं परंपरा प्राप्तो योगो राजर्षियो विदुहु, ऐसे परंपरा को चलते चलते इस योग को राजर्षियों ने जाना। जब राजर्षियों के पास योग आता है, मतलब राज शक्ति के पास जब अध्यात्म आता है, अगर वो टिक नहीं पाया तो गिरने की बहुत संभावना है। जैसे सत्ता के साथ बहुत सारी खराबियां भी आती है, ऐश्वर्य आता है, बहुत प्रकार की वैभव खड़ा हो जाता है। एवं परंपरा प्राप्तो योगो राजर्षियो विदुहु, ये परंपरा प्राप्त करके राजर्षियों ने जिस तरह जाना, सकाल नेह महतो योगो नष्टो परंतप, समय के चलते चलते यह योग नष्ट हो गया। आज से फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तुमको इसलिए कहता हूं। तो भारत का जहां तक आध्यात्म का सवाल है, वो आत्मा की अमरता का सवाल है। पूरे विश्व ने, स्वामी विवेकानंद से लेके दुनिया में जो जो भी लोग गए, आज भी हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा दुनिया में भारत के आध्यात्म के गान गा रहे हैं। ये भारत का सद्भाग्य है। जहां तक पहचान है हमारे राष्ट्र की, तो हम कहते हैं कि उत्तरम यस्य समुद्रस्य, जो समुद्र से उत्तर में है, हिमाद्रचैव दक्षिणम, जो हिमालय से दक्षिण में है, वर्षतंत भारत नाम, यह भारत, उसका नाम भारत है। भारती यस्य संतति, और उसकी जो संतानें हैं वो भारतीय है। इसलिए आज का नेशन का जो विषय है, राष्ट्र किसको कहते हैं? राष्ट्र कोई भूमि और जनता को मिलने से नहीं होता है, राष्ट्र आत्मा है। और भारत में बहुत सारे इतिहास के 2-4 पन्ने में ऐसा कहना चाहता हूं, शायद आज के युवाओं ने इतिहास पढ़ा हो ना पढ़ा हो पता नहीं, लेकिन भारत ने बहुत झेला है। भारत में बहुत सारे आक्रांताएं आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, लेकिन भारत का सद्भाग्य रहा कि जितने भी बाहर से आक्रांता आए वो भारत की होजरी में समा गए। आज हमारे में से कोई नहीं कह सकता कि कोई शक है, हूण है, कुषाण है। भारत की इतनी विशाल हृदयता के साथ आने वाले आक्रांताओं का आत्मसात करने की ताकत भारत की, यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें थी। और भारत में 712 में पहला पराभव हुआ। मोहम्मद बिन कासिम सीरिया से आया, सिंध के महाराजा दाहिर सेन को हराया। बहुत सारे राजा महाराजा थे हिंदुस्तान में, कोई मदद करने आया नहीं। मैं कई बार सोमनाथ मंदिर जाता हूं, आप भी जाते होंगे। 17 बार मोहम्मद गजनवी आया, गजनी से आके सोमनाथ तक आया, किसी रियासत ने उसको चैलेंज भी नहीं किया, किसी ने रोका तक नहीं, किसी ने उसको एक चैलेंज भी नहीं दिया। एक बार आता समझ में आता है, 17 बार आया, बार बार भग्न करके चला गया।
ईस्वी सन 712 से 1757 का कालखंड भारत ने जो झेला है, मुगल, तुर्क, अफगान, 1000 साल का, 712 से 1757 देश में बहुत सारी साइक्लोन की तरह, झंझावतों की तरह आक्रांता आई। हम शासक के गुलाम जरूर रहे, लेकिन हमने एक दिन भी सांस्कृतिक गुलामी भारत ने नहीं स्वीकारी। ध्वस्त होते हुए आक्रांताओं के सामने लड़ने के लिए बार बार भारत भूमि वीर प्रसूता भूमि है। लड़ने के लिए आक्रांताओं के सामने अनेक वीर शहीदों ने अपने बलिदान दिए। राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, वीर बैरागी, बंदा, बहुत सारी सीरीज ऑफ लीडर, सीरीज ऑफ मार्टियर्स ये भारत ने अपनी भूमि में, भारत माता ने जन्म दिया। इस भारत के बारे में हमारी अवधारणा क्या है? आजकल हम लोग विदेशों के प्रभाव में ऐसे फंस गए हैं। ब्रिटिश शासन के बाद ना हम ब्रिटिशर बन पाए, ना हम भारतीय रह पाए। हमने हमारी मूल ताकत को खो दिया। आज की अगर समस्याओं की कोई जड़ है तो हमने हमारा इतिहास को भुला दिया, हमने हमारी परंपराओं को भुला दिया। हमारा गौरवान्वित इतिहास जिसको हम कहते थे कि सुवर्ण युग था भारत का, उस युग की पहचान को हमने भुला दिया। और सारी समस्याओं की जड़ अगर कोई है तो ये हमारा, ये सबको भुला देना, देश की एकता, अखंडितता। हम कहते हैं तमाम ज्ञाति, जाति, पंथ, प्रांत, भाषा, संप्रदाय भिन्न भिन्न होते हुए भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, यह भाव को हम लोग भूल गए। और हम लोग जिस तरह से हमने नदियों को भी माताओं का स्थान देकर पवित्रता का जो एक आत्मसात किया था, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये सारी जो भारत को जोड़ने की व्यवस्था है, चाहे आप पूजा नदियों की करो ना करो, चाहे आप पर्वतों की पूजा करो ना करो, लेकिन भारत की सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम, अनेक ज्ञाति, अनेक जाति, अनेक भाषा, अनेक प्रांत, इतना होते हुए भी भारत इतने सालों के बाद विदेशी विधर्मियों के, आक्रांताओं के 1000 साल का गत कालखंड, 200 सालों का अंग्रेजों का कालखंड, उसके बाद भी फिर से खड़ा हुआ। दुनिया में भारत की जो ताकत है, उस ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। हम लोग आज कहते हैं 100 करोड़ से ज्यादा अपनी ज्ञाति, जाति, पंथ और भाषा संप्रदाय से टूटा है। भारत से भी उभरती हुई विश्व की ताकत बन रही है। आज 60 देश की इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो भारत बन चुका है। और ऐसा एक अनुमान है कि आने वाले दिनों में भारत जो प्रगति करेगा तो दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी आर्थिक व्यवस्था 2050 तक भारत होगा। लेकिन उसके लिए उत्तरदायित्व किसका? कंधों पर आने वाली है आप लोग, युवा। बूढ़े लोग, पुराने लोग तो चल बस जाएंगे जैसे नदियों का प्रवाह बहता है। जिनके कंधों पर भारत की भाग्य धरोहर आने वाली है, वो युवाओं के कंधे मजबूत होना चाहिए। और इसलिए आज का विषय भी मुझे बहुत, आप लोगों ने जो दिया है युवा और भारत, मेरे देश के बारे में, मेरे युवाओं, जो भारत में हमारी अवधारणाएं हैं आज हमारे सामने स्पष्ट होने लगी है। और मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा कि इस देश में सबसे ज्यादा युवा धन हो, लेकिन आज हमारे युवाओं के मन में भी, आप सभी को मैं एक कहना चाहता हूं कि डिग्री लेना, जब युवा पढ़ता है तब मन में एक स्वप्न होता है कि मैं डिग्री ले लूंगा, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी हो जाऊंगा और अच्छी एक बाबू की नौकरी मिल जाएगी, रिवॉल्विंग चेयर घूमती होगी, मैं बटन दबाऊंगा और प्यून पानी पिलाएगा। दिस इज नॉट ट्रू। प्यून में भी कोई नहीं रखेगा, क्योंकि डिग्री से अगर इंसान बनता हो, डिग्री से अगर इंसानियत बनती हो, डिग्री की आवश्यकता है। लेकिन डिग्री नौकरी लेने के लिए ही पानी है, इस ख्याल को
इसके युवाओं को छोड़ना पड़ेगा। और जब तक युवाओं के मन में अपने पैरों पे खड़े होने और पसीना बहाने से हम परहेज करेंगे, तब तक हमारा कोई सहारा नहीं होगा। इसलिए चाहे हम मेहनत करें, पसीना बहाएं और अपने स्वाभिमान से जिए। और आज की सोच हमारी जो है, विदेश में आज करीबन 2 करोड़ से ज्यादा युवा भारत के दुनिया में है, और पता है आपको करीबन 30 लाख से ज्यादा अमेरिका में है। और करीबन इसको हम लोग ऐसा ना सोचे कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये प्रतिभा का पलायन नहीं है, इट इज ए ब्रेन इन्वेस्टमेंट पूरी ग्लोब के लिए। भारत के युवा पूरी ग्लोब के लिए इट इज ए ब्रेन इन्वेस्टमेंट। वो प्रतिभा निवेश है, और प्रतिभा निवेश होगा तभी भारत की बात सुनेंगे ना। आपने देखा होगा कि आज भारत की ताकत क्या है। अंतरिक्ष में वी आर दी 4th लार्जेस्ट स्पेस पावर इन दिस ग्लोब। और जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अभी आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, स्वदेशी का महात्मा गांधी जी का स्वप्न था, स्वदेशी का सब लोगों का स्वप्न था, लेकिन आजादी के बाद हमें जो दिशा लेनी चाहिए थी हम न ले पाए। हमें जो दिशा में जाना था, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, हमने समाजवाद के पीछे हम चले गए। थोड़े समय लगा कि रशिया के पीछे चले हम साम्यवाद के आसपास समाजवाद में, लेकिन रशिया भी टूटा। और मैं आपको एक जोक सुनाना चाहता हूं कि रशिया में जिस तरह से सीक्रेट, थोड़ी हंसने की बात है, आप लोग सब युवा है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गोर्बाचेव उस समय प्रेसिडेंट थे, वो वॉशिंगटन में शिखर मंत्रणा के लिए जा रहे थे। तो रशियन पॉलिसी क्या है कि दुनिया को पता नहीं रहना चाहिए कि रशिया में क्या हो रहा है। तो ही वॉज ए फैटी मैन। तो एयरक्राफ्ट में चढ़ते चढ़ते फैटी होने की वजह से ट्राउजर फट गया। अब ट्राउजर फट गया और रशियन प्रेसिडेंट का तो क्या करना, तो पहली सीट पे बैठ गया। एंड ही लुक्ड अराउंड, नोबडी हैज सीन मी, आई एम हैप्पी। किसी ने देखा नहीं है। और व्हेन ही लैंडेड इन वॉशिंगटन एयरपोर्ट, द रशियन एम्बेसडर वाज रनिंग। और गोर्बाचेव ने सोचा कि मैं आखिरी उतरूंगा कि कोई पीछे ना देखे कि ट्राउजर फटी हुई है। तो सब लोग उतरने के बाद मैं आखिरी में उतरूंगा और सीधे कार में बैठ जाऊंगा। बट एम्बेसडर दौड़ दौड़ के सीढ़ी के पास आया एयरक्राफ्ट के और कहा, सर प्लीज चेंज योर ट्राउजर। बट हाउ यू केम टू नो? सर इट वाज इन वॉशिंगटन न्यूज। ये तो वॉशिंगटन न्यूज में आ गया। मतलब दुनिया में आज कोई छिपी बात रह पाएगी नहीं। नाउ इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड, इट इज अ कम्युनिकेटेड, मास कम्युनिकेटेड वर्ल्ड। और इसमें भारत आज दुनिया में, आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस तरह से एयर स्ट्राइक की, अगर हमारा नेतृत्व सक्षम नहीं होता तो दुनिया हमारे ऊपर चढ़ बैठती। और सबसे ज्यादा चिंता इस भारत को अगर कोई है तो वो आतंकवाद की है। करीबन 42,000 लोगों का रक्त बहा है मेरी मातृभूमि में। सरहद पे बहता हमें कोई दर्द नहीं होता, हम शहादत ले लेते, वीरता में हमारी कोई कमी नहीं, हम शहीद हो जाते। लेकिन मेरी मातृभूमि में, वो भी आजाद भारत की भूमि में, 42,000 लोगों का रक्त बहा। किस कारण? आतंकवाद। और इस आतंकवाद के सामने लड़ने में भारत के सामने नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आज मनोबल मजबूत हो रहा है देश का। और जिस तरह से 2 साल के 5 साल की अवधियों में जिस तरह काम किया, और 1 साल जिसको आपने पहले जिक्र किया 2-0, 1 साल सेकंड टर्म का, देश आगे बढ़ रहा है। और मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि आने वाले दिनों में युवाओं के सामने बहुत बड़ा भविष्य है, युवाओं के सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस भी है।
और हमारे विकास में बाधाएं भी बहुत है। आजादी के 7 दशक के बाद 2014 तक हमारे देश में टॉयलेट नहीं था। हमारी माता बहनों को सूर्य अस्त होने की राह देखना पड़े, के लिए सूर्यास्त की राह देखना पड़े। आजादी के 7 दशक निकल गए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नरेंद्र भाई का कि आज देश में हम लोग 95% घरों में दे पाए। देश में होता क्या है, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। इस विषय को अगर हम पीड़ा के रूप में लेते हैं तो योजना पीड़ाओं से निकलती है, और पीड़ा का अनुभव अगर शासन न करें तो उसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी इतना होने के बावजूद कई बार हमारे देश में ज्ञाति जाति के संघर्ष हो रहे हैं। हमारा वाक्य कहता है सर्वे सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया, सारे लोग सुखी। तो ये भेदभाव क्यों है? छुआछूत इतने सालों के बाद भी कहीं कहीं कोने में क्यों दिख रही है? जिस देश में ऐसा कहा जाता है कि पेड़ में भी ईश्वर है, पत्ते में भी ईश्वर है, पत्थर में भी ईश्वर है, जीते जागते ईश्वर के अंश मनुष्य को छूना नहीं। हम कुत्ते को छू सकते हैं, सूअर को छू सकते हैं, जीते जागते इंसान को छूने से परहेज। ये हमारे विकास की पहली बाधा है। जातियों का संघर्ष हमारी दूसरी, प्रांतों का संघर्ष हमारा तीसरा संघर्ष, भाषाओं का संघर्ष हमारा चौथा संघर्ष। इस सब को मिटाकर राष्ट्र प्रथम, ऐसी बात युवाओं के मन में राष्ट्र का गौरव होना कि 100 करोड़ की आबादी का देश है मेरा। दुनिया में 2 ही देश ऐसे हैं, सबसे युवा देश है मेरा। आई एम द ओल्डेस्ट कल्चर इन दिस वर्ल्ड। रोम, यूनान, ग्रीक। तो ये जो देश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो सोच हमारी डिग्री लेने का और स्वप्न हमारे साकार ना होते हुए फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन के बाद अगर मोड़ जाते हैं कहीं तो क्राइम की दुनिया में भी लोग चले जाते हैं। इसलिए भारत के युवाओं के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है। चैलेंज ये है कि हमको सामाजिक समरसता से जीना है, बंटवारा नहीं करना है। भगवत गीता में कहा है कि चतुर्वर्णम सर्जाम्यहम्, उसका सब लोग ब्यौरा देते हैं कि ये तो भगवान ने बनाया है, लेकिन दूसरा पंक्ति कोई पढ़ते नहीं कि गुण कर्म विभागशः, जन्म से कोई न ऊंच है न नीच है। अगर ऐसा होता तो ट्राइबल जैसे वालिया वाल्मीकि नहीं बन पाते, चमड़ा घिसते हुए संत रविदास भगवान की परम शिष्य संत शिरोमणि नहीं बन पाते। यहाँ जो उच्च आदर्श है भारत का, वो जीवन का आदर्श है, जिसको हम आध्यात्मिक आदर्श, उसके आधार पे भारत की नींव रखी है। लेकिन इतना होने के बावजूद देश खड़ा है, और आज कोरोना की जिस संकट की घड़ी में हम लोग जी रहे हैं, मैंने देखा है सेवा करते हुए लोग, अगर आपने देखा होगा इस 2 महीनों के दौरान, कोई पुस्तक में लिखा है कि ऐसा कोई परिवार भूखा है तो उसके लिए अन्नदान करो? 4वीं, 5वीं, 6वीं कक्षा के कोई पुस्तक में लिखा है? नहीं लिखा है। क्यों लोग कतार में लग के, किसी के कोई पहचान नहीं है, उसको खाना क्यों खिलाता है? उनको राशन क्यों देता है? उनके परिवार की चिंता क्यों करता है? यही जो है वो भारत के संस्कार है। और हमारी गलती कहां हुई? हमने वेस्टर्न मॉडल को स्वीकारा। आजादी के पश्चात तुरंत जो मॉडल विकास का होना चाहिए था, वो वेस्टर्न मॉडल हमने स्वीकारा। और हमने ये नहीं सोचा कि हमारे 130 करोड़ लोगों के आज 260 करोड़ हाथ है, उसको काम चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उसको तनख्वाह चाहिए, उनका पेट भरना चाहिए, उसका जीवन चलना चाहिए। तो 7 दशक के बाद अगर आज हम खड़ा हो रहे हैं
तो उसके पीछे हमारी ताकत लगनी चाहिए, युवाओं की ताकत लगेगी तो ही होगा। और पर्यावरण आज इतना बड़ा संकट है क्योंकि हमने प्रकृति का इतना शोषण किया। एक व्यक्ति को 10 गाड़ियां चाहिए, एक व्यक्ति को 10 बंगले चाहिए, एक व्यक्ति को 10 गुना चाहिए। वो प्रकृति का शोषण है। और हम पुराने जमाने में रोटी खाने से पहले कुत्ते का कान जैसी रोटी छोड़ देते थे। कोई पुस्तक में लिखा नहीं था कि हमारी गली में कुत्ता भी भूखा नहीं मरना चाहिए। बहनें रोटियां बनाने से पहले गाय की रोटी बनाते थे कि वो पहली रोटी गाय की है। ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ विषय था और हमने उस प्रकृति का दोहन नहीं, शोषण किया। दोहन किया होता तो दूध फिर से भरता। हम भारत में गाय दोते हैं तो आधा आंचल बछड़े के लिए छोड़ देते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय हमारे पर्यावरण की, हमारी नदियों की, माताओं की कल्पना के पीछे क्या है, इसको गंदी मत करो। ये मां है। धरती का जल हमने पूरा निकाल लिया 50 सालों में। कोई बच्चा मां का दूध पीता है तो खून नहीं निकालता, कोई बछड़ा गाय का दूध पीता है तो खून नहीं निकालता। हमने खून निकाला जमीन से, इतना डीप, इतना गहरा करके हमने खून निकाला है। इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन में भारत की भूमिका आने वाले दिनों में विश्व में बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि हमारा प्रकृति के साथ आदि अनादि काल से तादात्म्य रहा है। और आज हम वैश्विक समुदाय में अग्रणी देश बने हैं और उगते हुए सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है। ट्रंप ऐसे हिंदुस्तान नहीं आते। इन सब के लिए इंडिया इज द मार्केट, बाजार है। और बाजार में हर कोई व्यापार करने आता है क्योंकि यहां ज्यादा कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ेगा, तरक्की होगी, लोगों की खर्च करने की, व्यय करने की शक्ति बढ़ेगी, तभी तो देश का विकास होगा। इसलिए आवश्यक है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता का भाव, सामाजिक समरसता का व्यवहार, प्रामाणिक नेतृत्व। और नेतृत्व की प्रामाणिकता सबसे बड़ी चैलेंज है। हम जब पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, तब उस जमाने के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण, देश में आपातकाल था, स्टूडेंट की सभा हुई और कई स्टूडेंट ने एक ने पूछा कि जयप्रकाश जी, आप क्या मानते हैं इस देश में भ्रष्टाचार कब मिटेगा? उस समय लोकमान्य जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, लोकनायक ने, वो टोटल रिवॉल्यूशन के पक्षधर थे कि मैं जयप्रकाश नारायण इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं आजीवन इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि इसका मुझे शिकार नहीं बनना पड़े। हमारी जो कल्चर है उसमें एक बड़ी समस्या है कि बेटा नौकरी करता है तो पिता पूछते हैं कि आपकी तनख्वाह क्या है। बच्चा नया नया नौकरी करता हो, 30-35 हजार, सरकार में 40 हजार, बोलता है कि पापा इतनी है। और पापा पूछते हैं कि तनख्वाह के अलावा और कितना मिलता है। मैं कहता हूं कि ऐसे पिता दुनिया से जल्द विदा ले लें। भारत का अगर नया निर्माण करना है तो एथिक्स एंड वैल्यूज, समाज में नैतिक मूल्यों का जिस तरह अधःपतन हो रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं द सोशल वैल्यूज एंड मोरल ऑफ सोसाइटी इज डिटोरिएटिंग डे बाय डे। दिन प्रतिदिन समाज में नैतिक मूल्यों का अधःपतन हो रहा है और इस अधःपतन के कारण आज हम लोग जिस तरह से विकास की बात कर रहे हैं, जीडीपी इज नॉट द पैरामीटर फॉर द डेवलपमेंट। जीडीपी विकास का कोई मापदंड नहीं है, पैरामीटर्स नहीं है। इसके बाद आया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो भी नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स मस्ट बी द इंडेक्स फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो भूटान में है।
भारत वही करना चाहता है कि एक दिन इस देश में प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु से लेकर यहां शरीर के भोगों की संतुष्टता के साथ साथ आत्म संतुष्ट का भाव। एक स्वामी विवेकानंद जी का जो उस जमाने में जो कहना था कि मैं भविष्य दृष्टा तो नहीं हूं, न मैं उसके लिए चिंतित हूं, किंतु एक दृश्य मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट आता है। आज से करीबन 125 वर्ष पहले कहा था कि हमारी प्राचीन मातृभूमि एक बार फिर जाग उठी है। यह नवयौवन प्राप्त कर पहले से भी अधिक भव्य दीप्ति से साथ अपने सिंहासन पर बैठी हुई है और समस्त संसार को शांतिपूर्ण और मंगलमय वाणी से उसका संदेश सुनाएगी। और आज के युवाओं के बारे में एक मन में जो स्वप्न है, खास करके ग्रामीण और शहरी दो प्रकार के युवा, उसमें सबसे ज्यादा चिंता का विषय है रोजगार। और नौकरियां तो सीमित रहती हैं, सरकारों में भी, निजी व्यवसाय में भी सीमित रहती है। स्वरोजगार की सबसे ज्यादा आवश्यकता, अगर किसी को रोजगार देना है तो ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार ही माध्यम बनता है। लेकिन आजादी के पश्चात तुरंत जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना चाहिए था, आज देश में करीबन 65% भूमि ऐसी है जो वर्षा से आधारित है, वो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है आजादी के 7 दशक के बाद। और ग्रामीण भारत धीरे धीरे माइग्रेट होता रहा है। और मैं ये कहूंगा कि अर्बनाइजेशन हैज टेकन प्लेस। भारत में शहरों का जिस तरह से विकास हो रहा है, ऐसे ग्रामीण भारत मेरे दृष्टि से मर रहा है। 5.5 लाख गांव है भारत के। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि इस गांव को फिर से हरा भरा कैसे किया जाए, वहां की स्थिति को आर्थिक स्वरूप से कैसे खड़ा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, वो भी हमारे सामने समस्याएं हैं। पीने का पानी स्वच्छ कैसे दिया जाए, वो भी समस्या है। और जहां तक युवाओं के मन में एक सवाल आता है कि डिग्री लेने के बाद इतनी बड़ी समस्या क्यों है, नौकरियां क्यों नहीं है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से भारत की नई ऊंचाइयों को अगर प्राप्त करना है तो हमको डिग्री बनाने के कारखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिंह जैसे गर्जना करते युवा हमारी संस्थानों से निकले और जीवन के हर क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी रोजी रोटी कमा सके, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता आज भी है। और पुरानी जिस पद्धति है, जिसकी शिक्षा से लिए जीवन में कोई उपयुक्त नहीं है, ऐसी शिक्षा में भी बदलाव आना चाहिए। आप सभी कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षा के साथ जुड़े हुए युवा लोग हैं, तो इस विषय में भी बहुत पहल हो चुकी है। इंडिया इज राइजिंग। अभी अपना जिस तरह से मेक इन इंडिया, हमारी खुद की पहचान बनाने में हम लोग जिस तरह से जुटे हैं, और इस नरेंद्र भाई ने एक स्वप्न रखा है हम सबके सामने कि भारत आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता तब आएगी, मैंने पहले ही कहा, चाहत से स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी। जो हमारे पास नहीं है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारी दुनिया से लाएंगे, लेकिन हमारे पास दातुन था, तो कोलगेट नहीं होगा तो भी हम मरेंगे नहीं। हमारे पास बहुत सारी निजी व्यवस्थाएं हैं, अगर विदेशी व्यवस्था नहीं है तो भी भारत चलेगा।
अगर हमको लग्जरी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी चलनी चाहिए, ऐसा स्वाभिमान भारत को खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी निर्यात जितनी बढ़ेगी, आयात जितना कम होगा, उतना ही भारत को आने वाले दिनों में आर्थिक रूप से खड़ा होने में सबसे बड़ी आवश्यकता है। खास करके इस कोरोना की महामारी के बाद जिस तरह से आर्थिक संकट पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा, और खास करके युवाओं को जिस तरह से उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए मानसिक तैयार से बने। और जो भारत में है, भारत में बन रहा है, भारत में बन सकता है। उदाहरण तरह पीपीई किट हमारे तो बनती ही नहीं थी, एक भी नहीं बनती थी, आज लाखों में बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि आवश्यकता, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता वो शोध की मां है। इसलिए आज हमारी सबकी आवश्यकता है कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो, हम अपने बलबूते पे खड़ा हो, और आज के युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए ना सिर्फ डिग्रियां बट टेक्निकी और रोजगार दे सके, स्वरोजगार दे सके, ऐसी शिक्षा का प्रावधान, ऐसी शिक्षा को लेना, पैरों पे खड़ा होना। कल्पना करो कोई मास्टर डिग्री लिया हुआ लड़का अपने माँ बाप से पेट्रोल का पैसा मांगे, बेरोजगार, शादी भी हो चुकी हो, बच्चे भी हो, उनकी मनोदशा क्या होगी? लेकिन वो श्रम करने तैयार नहीं है। हमने एक मानसिकता बना ली है कि वी आर एजुकेटेड, वी आर व्हाइट कॉलर पीपल, हम लोग श्रम नहीं कर सकते। श्रम से शर्म जिस दिन हमने की ना, उस दिन से हमारी तरक्की रुक गई। समझ लीजिए, श्रम, पसीना बहाना चोरी करने से तो अच्छा है, गलत करने से तो अच्छा है, भ्रष्टाचार करने से तो अच्छा है कि पसीना बहा के कम से कम अपनी रोटी कमाएं। ये स्वाभिमान आज के युवाओं में आना चाहिए। डिग्रियों से नौकरियां एयर कंडीशन ऑफिस में मिले ना मिले, इट्स इमटेरियल, लेकिन मैं अपने बलबूते मेरे पसीने की कमाई का खाऊंगा, आधी रोटी भी खाऊंगा तो मेरी होगी। ये देश में आवश्यकता है। वैसे श्रमिक, स्किल्ड लेबर कई इंडस्ट्री में मिल नहीं रहा है, अनस्किल्ड भी नहीं मिल रहे हैं, और एक तरफ बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज खड़ी है। ये सारी समस्याएं पूरे देश में है, और आप सब इसी के नाते हमारा देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मैंने पहले ही कहा कि नरेंद्र भाई का पहला फेज मैंने बदलाव देखा। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब मैं उत्तर प्रदेश में था चुनाव के दौरान, तो गांव गांव में जैसे प्रवास करते थे तो झोपड़ा कच्चा था, लेकिन बाहर लिखा था इज्जत घर शौचालय नंबर 1, 2, 3 करके। ये बदलाव था। एक उदाहरण देता हूं, वहां 2 गांव थे, एक तिवारीपुर और तिवारीपुरवाद, 400-500 की आबादी का। बिजली का खंभा नहीं था आजादी के 70 साल के बाद। ये देश की स्थिति थी। 3-4 महीने पहले उस समय बिजली पहुंची, लोग उत्साहित थे, आनंदित थे, बहुत सारे दीप जलाए कि हमारे गांव में बिजली आई। तो देश में इस तरह की जो स्थितियां है उसको भी बदलना है, और भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज हम 6ठे स्थान पे हैं, और जिस तरह से प्रेडिक्शन किया गया है 2050 वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड। तो ये करने के लिए बहुत सारी प्रामाणिक नेतृत्व, सही दिशा, देश के लिए स्वाभिमान। आप जापानीज को पूछिए, वो कहे आई एम जापानीज, आई एम प्राउड ऑफ इट। आप किसी जर्मनी वालों को पूछिए, वो कहेगा आई एम जर्मनी, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग जर्मन। हमारे वहां मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं पटेल हूं, मैं वो हूं, इति। आई एम इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ इट। ये हमारी कमी है, और रास्ते बहुत है आगे जाने के, देश के लिए संभावनाएं भी बहुत है।
12 महीनों में 11 महीना करीबन सूर्य देव भारत में है। हम सोलार से बहुत कुछ कर सकते हैं। सूर्य की शक्ति पूरी दुनिया में जिस तरह हमारे भूभाग में है, एशियन कंट्रीज के, ऐसे भूभाग में नहीं है। कई दिन में वर्षा होती है, दिन में बादल आ जाते हैं, दिन में सूरज निकलता है, 6 महीना सूरज ही नहीं है। ये हमारी शक्ति है। बहती हुई नदियों की धाराएं, बर्फीली नदियां 12 मास बहती रहती है। ये हमारी भारत की शक्ति है। तो इसलिए हर चीज में युवाओं के लिए प्रेरणा अगर कहीं से लेनी है तो इतिहास से ले, महापुरुषों से ले, अपने मान बिंदुओं से ले, अपनी परंपराओं से ले, अपनी संस्कृति से ले, अपना अस्खलित बहता प्रवाह संस्कार का जो है, इतिहास का है, उससे प्रेरणा मिल सकती है। और प्रकृति का जब जब प्रकृति से खिलवाड़ किया ना, तब तब प्रकृति ने बिल्कुल प्रताड़ित किया है। मैं उदाहरण देता हूं, कुछ साल पहले महाराष्ट्र के विदर्भ में धान की खेती उस क्षेत्र में होती थी। तो शुरू शुरू में बहुत सारे मेढक आ गए और मेढक ने धान को कहीं कहीं नीचे गिरा दिया, कहीं ऐसा कर दिया, कैसा कर दिया। तो किसानों ने सोचा इस मेढक को पकड़ो। आज के युवाओं के संदर्भ में मैंने जो कहना था वैसे तो कह दिया है। जहां तक राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय एकात्म भाव, समरस व्यवहार, प्रामाणिक नेतृत्व, राजनीतिक स्थिरता, पर्यावरण प्रेम, अब देशानुकूल के सामने हमें संघर्ष करना है। और खास करके कोरोना के इस महामारी से हम लोग सभी जल्द से जल्द मुक्त हो। और खास करके इस क्षेत्र में आप सबको शुभकामना है कि इसमें सभी लोग स्वस्थ रहें और हमारे जो वॉरियर्स है लड़ रहे हैं उनको हम ताकत प्रदान करें और लड़ने की शक्ति इस संघर्ष के सामने लड़ने की हो। और जल्द से जल्द भारत से, दुनिया से इस मनुष्य को परेशान करने वाली महामारी से देश मुक्त हो, यही प्रार्थना है। और आप सभी को फिर से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि बार बार इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता रहा और मेरा भी कहने का प्रभाव बीच बीच में कटता रहा और आपको सुनने में भी दिक्कतें हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके अमरोली कॉलेज के व्यवस्थापन में प्रिंसिपल चावड़ा जी और उनकी टीम, उनके सहयोगी, कोऑर्डिनेटर्स और व्यूअर्स जो भी फेसबुक और अन्य माध्यमों से लाइव देख रहे थे। मेरे मन में जो विचार थे मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर मुझसे कुछ उत्तर हो पाएगा तो आपके सवालों का कुछ प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूंगा। और यही माध्यम सबसे बड़ा बिना कष्ट पहुंचने वाला माध्यम है। इसलिए आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मन में जो सवाल उठते हैं, मैं इतना सक्षम तो नहीं हूं कि सारे सवालों का जवाब दे सकूं, लेकिन यथा योग्य प्रयास करूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। ચિરાગ સર ને વિનંતી છે કે પ્રશ્નોત્તરી ઓર તરફ આગળ વધીએ. ચિરાગ સર. मारवा। हेलो सर, आपने बहुत सरल भाषा में युवाओं को नेशन के साथ जोड़ने का काम किया और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई जो अभी जो भी चैलेंजेस थे उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सके। तो आपने बहुत सारी चीज़ें विस्तार से समझाया। कुछ क्वेश्चंस ऐसा था कि क्या आत्मनिर्भर गांव नहीं बन सकता? जो शहरों में जो सुविधा है वही गांव में मिले, जो रोजगार के अवसर गांव में ही पैदा किया जा सके ताकि गांव के लोगों को शहरों में माइग्रेट ना होना पड़े। तो आत्मनिर्भर गांव का जो कंसेप्ट है जी रिलेटेड जी अभी जवाब दें। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, आत्मनिर्भरता की बात में जहां तक गांव का सवाल है, मैं आपको थोड़े 50-60 साल पहले के समय में ले जाना चाहूंगा।
या शायद आजादी के उत्तरार्ध में। गांव आत्मनिर्भर था ही, क्योंकि गांव में जो पैदा होता था वो गांव में कुम्हार है, मिस्त्री है, मोची है, टेलर है, सारे की सारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था गांव में समाप्त होती थी। उनकी जरूरतें गांव में सारी की सारी, गांव में कृषि के उत्पादन जो होता था उसके बदले में उनको ये सारी चीजें, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे, वो हो रही थी। लेकिन इसके बाद का जो एक समय आया जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की असर और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके बाद का जो विचार और विषय आया उसमें गांव का शोषण हुआ। और आत्मनिर्भर गांव बन सकता है। मैं उदाहरण दे सकता हूं कि अगर किसान कोई कॉटन पैदा करता है, जैसे हमारी अमूल है, दूध गाय भैंस गांव में है लेकिन हमारी अमूल की ब्रांड पूरे विश्व में है, तो वो एक ब्रांड है। ऐसे हर कृषि की ब्रांड को अमूल जैसी ब्रांड बनाई जाए तो मेरे ख्याल से गांव और शहर में कोई अंतर नहीं रहेगा, ऐसी दिशा में जिसको हम कहते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और पशुपालन, इसको अगर हम आगे बढ़ाए तो मेरे ख्याल से आत्मनिर्भर गांव शहरों से ज्यादा होगा, क्योंकि सारी चीजें जो पैदा होती है वो गांव में पैदा होती है, जो जीवन में जरूरी है, खाना पीना ओढ़ना। तो इसलिए आत्मनिर्भर गांव बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की बजाय हाथ को ज्यादा काम चाहिए, ऐसी कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वैल्यू एडिशन, प्रोसेस इंडस्ट्री, वो सारी गांव में लगे। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी की ये 20 की जो 1 साल की प्रावधान है उसमें किसानों की वैल्यू एडिशन के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। और 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी का संचय करके ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन करके जो पानी बचा जाएगा वो पानी के लिए भी आत्मनिर्भर होगा। और ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारी, जैसे कि हमारे प्रजापति है, उनकी कलाकारी बहुत सालों से है। वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, छत बनाते थे, रूफ बनाते थे। आज स्टील ने उसकी जगह ले ली, लेकिन इसकी भी पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यकता है। तो ये हो सकता है, जैसे हमारे मिस्त्री है, पहले किसानों के लिए बनाते थे, आज एग्रो इंडस्ट्री बन गया। हम लोग बाटा बाहर से लाए, लेकिन हमारे मोची को हम बाटा की टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए। अभी ये जरूरी है। इसलिए आत्मनिर्भर गांव हो सकता है, लेकिन इसके लिए पूरी मिशन लगाना पड़ेगा देश को और सरकारों को, देश की राज्यों की सरकारों को ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण अर्थतंत्र सुदृढ़ हो ताकि माइग्रेशन रुके। और एग्रीकल्चर हैज गॉट द अबंडेंट पोटेंशियल फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो जरूर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक क्वेश्चन था। जब अभी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और उस टाइम पे बॉयकॉट चाइना कैंपेनिंग भी अभी बहुत जोरों पे है और बहुत सारे लोगों ने अपना जो टिकटॉक और जो भी एप्लीकेशन है वो डिलीट भी कर दिया। लेकिन कल ही ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना की गवर्नमेंट का जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक बहुत कटु लेकिन बहुत ही सच एक जो सेंटेंस था वो लिखा था कि हम भारत में चाइना का विरोध, मतलब भारत नहीं कर पाएगा क्योंकि हम घर घर तक पहुंच चुके हैं। तो उससे हम कैसे निकल सकते हैं? देखिए, जहां तक आत्मनिर्भर भारत का सवाल है, अकेला चाइना का विषय नहीं है। चाइना की हर चीज हमारे घर तक पहुंच गई है, बिंदिया तक पहुंच गई है, खिलौने पहुंच गए, फटाके पहुंच गए, और बैटरी, टॉर्च से लेके, खिलौने से लेके बहुत सारी चीजें। लेकिन मैंने कहा ना, चाहत से स्वदेशी, ये हिंदुस्तान के लोगों को निर्णय करने की आवश्यकता है कि चाहत से स्वदेशी जो हमारे पास नहीं है वही विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन जिस हमारे पास है, हो सकता है,
उसका उपयोग ना करें। लेकिन अकेले चीन का विषय नहीं है, हम लोग प्राउड अनुभव है, दिस इज मेड इन यूएसए, दिस इज मेड इन जर्मनी, आई एम यूजिंग दिस थिंग, इट इज मेड इन जापान। सो ऐसा प्राउड हम लोग जो फील कर रहे हैं, वी शुड बी ashamed of using it। अगर ऐसा होगा तो ही आत्मनिर्भर भारत होगा, बाकी आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? आई एम इंडियन, आई एम बीइंग प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, I am being proud of you. I am supporting my fellow Indians by using the Indian articles। तो ये अगर होगा तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज होगी। हाँ जी सर। सर आपने भारत बहुत ही यंग कंट्री है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस यंग पॉपुलेशन के पास आज रोजगार की कमी है। रोजगार अभी उन लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्राइम रेट में भी बढ़ावा हो सकता है। तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, रोजगार की हम लोग जिस तरह से डेफिनेशन देते हैं, रोजगार इज नॉट ओनली दी सर्विस ओरिएंटेड, इसको जॉब ओरिएंटेड, सेल्फ स्वरोजगार भी हो सकता है, जिसको हम स्वरोजगार कहते हैं। इसलिए सरकार ने जिस तरह से मुद्रा लोन का आयोजन नरेंद्र भाई के आने के बाद किया, तो करीबन 3.5 करोड़ युवाओं को 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख की मर्यादा में मुद्रा बैंकों से लोन देके उनको निजी व्यवसाय में जोड़ा है। इसलिए मैं आज कहता हूं कि हमारी डिग्री है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, मैं उदाहरण देता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति में कहाँ कमियां हैं। उदाहरण ये है कि समझो आप सीनियर जूनियर केजी के कोई बुक ले लो, क्या लिखा है उसमें कि आई वेंट टू लंदन टू लुक एट द क्वीन, आई सॉ ए लिटिल माउस अंडर हर चेयर। मैं रानी को देखने इंग्लैंड में गई, उसके नीचे, कुर्सी के नीचे चूहा देखा, उसमें स्वामी विवेकानंद कभी पैदा नहीं हो सकते, नंबर 1। और नंबर 2, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा लेना उसका मतलब है श्रम नहीं करना, ऐसा नहीं है। श्रम करने वाले को आज भी श्रम का मूल्य मिल रहा है। कम से कम मनरेगा में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाए हैं, और भी रोजगार की संभावनाएं हैं। लेकिन शिक्षित लोग, अगर हम ये सोचेंगे कि हम सब्जी नहीं बेच सकते, हम ऑटो नहीं चला सकते, हम छोटे मोटे थैले नहीं लगा सकते, तो इस बेरोजगारी का उपाय नहीं है। बेरोजगारी का उपाय यही है कि श्रम जिसको करना है, जिस हाथ को, उसके लिए काम भारत में और भी मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि शिक्षा की तुलना में रोजगार की कमियां हैं, वो रोजगार हमें स्वयं पैदा करना पड़ेगा। बड़ी इंडस्ट्री से इतना रोजगार हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री 10 करोड़ की लागत से एक व्यक्ति को रोजगार देती है, और स्मॉल इंडस्ट्री एमएसएमई 1 करोड़ की लागत से 10 लोगों को रोजगार दे सकती है। तो वी नीड टू हैव मोर एम्फेसिस ऑन एमएसएमई, एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो सारे रोजगार गांव में भी मिलेंगे, शहर में भी मिलेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच सर। जी, हेलो। हाँ सर, आप गुजरात के एक्स होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और अभी इस टाइम पे कोरोना समय के ऊपर बहुत सारे जो कोरोना वॉरियर्स है, जैसे पुलिस है, अस्पताल है, डॉक्टर्स है, नर्सिस है, उसके ऊपर बहुत सारे अटैक किए गए। ऐसा कहीं पे भी दुनिया में नहीं देखा गया, सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है। तो आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, जहां तक सवाल है, हमने शुरू में देखा था कि मरकज के इश्यू में थोड़ा बहुत हमने देखा है, राजस्थान में देखा, दिल्ली में देखा, और कहीं भी। इसमें ऐसा है कि हमारी मानसिकता, ये कोरोना वॉरियर्स है, वो हम बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं, चाहे पुलिस हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, इवन हमारा सफाई कामगार, ये सारे के सारे हमारी सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन हम लोग जो ऑर्थोडॉक्स, जिस तरह से हमारी ग्रंथियों को हम बांध लेते हैं ना किसी दायरे में, वो नहीं बांधना चाहिए। और
इसलिए सरकारों ने काफी सख्त कदम भी उठाए हैं। जहां जहां ऐसी चीजें हुई हैं वहां सरकारों ने काफी एक्शन भी लिए हैं। और जहां तक कि देश की सुरक्षा के साथ का जो जो सवाल है उसमें काफी प्रावधान है अपने आईपीसी में, तो एक्शन लिया गया है। लेकिन एक्शन नहीं लेना पड़े वही तो आवश्यकता है कि जो लोग हमारे लिए खुद की जान जोखिम में डाल के हमको स्वच्छ रखने के लिए अपने परिवार की चिंता किए बिना हमारे लिए लड़ रहे हैं, ऐसे वॉरियर्स को तो सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान की कम नसीबी है, हम मजहब में बटे हैं, हम अपने संप्रदायों में बटे हैं, हम अपने ग्रुपों में बटे हैं। मैं तो चाहता हूं कि भारत माँ के बेटे हैं हम लोग, उसमें न नात है, न जात है, न संप्रदाय है, न कोई भिन्नता न है, ऐसा देश होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। सर अभी गुजरात में भी अपने संगठन में बहुत सारा काम किया है और अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, राज्यसभा का इलेक्शन और वो है। नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। हाँ। और उस दिशा में बहुत तेजी से काम भी हुआ है, बहुत सारी जगह से कांग्रेस मुक्त भी हो रहा है और कांग्रेस मुक्त के साथ कांग्रेस युक्त भाजपा हो रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति ऐसी है कि वो प्रवाहित रहती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब बारिश आती है तो बारिश के साथ नदियों में पानी आता है, पानी के साथ पतझड़ आते हैं, पत्ते आते हैं, मिट्टी आती है। नदी किसी को मना नहीं करती कि आप पतझड़ है, रेत है, मिट्टी है, हमारे साथ मत आइए। पानी पानी आगे जाएगा, बाकी रुक जाएगा और चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारे संस्कार इतने मजबूत हैं भाजपा के कि हमारी जो राष्ट्र की विचारधारा है भारत माता की जय से शुरू होती है। और भारत माता की जय तब होती है जब आखिरी छोर का व्यक्ति सुखी संपन्न होता है, तब भारत माता खुश होती है, जय होती है। इसलिए हमारी संकल्पना भारत की जिस तरह से है, उसमें जो कोई भी आएगा हमारे विचार से रहेगा, हमारी नीति रीतियों का पालन करेगा, हमारी शिस्त के अनुशासन में रहेंगे। और ऐसा है ना, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, गंगा नदी बहती है ना, तो कितने पत्थर बीच में आते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन वो पत्थर को भी शिवलिंग बना देती है घिस घिस कर। तो ऐसे पार्टी में कोई भी लोग जो आए उसको राष्ट्र के साथ समर्पित होने की ताकत भी भाजपा में है। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू मयंक सर। मयंक सर, आपका कोई क्वेश्चन है? सर ऑलमोस्ट आपने अपनी स्पीच में सारा सब कुछ कवर कर दिया है, बट एक लास्ट क्वेश्चन है कि क्या यूथ को स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ना चाहिए या फिर शिक्षण में स्पिरिचुअलिज्म लाना चाहिए? जी, आपका सवाल बहुत महत्व का है। स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात तो आज के विज्ञान के युग में इतनी संभव नहीं है, लेकिन पारिवारिक जीवन, पारिवारिक व्यवस्था, उसमें स्पिरिचुअल पार्ट होना चाहिए, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल है। और इतने सालों के कालखंड के बाद जो देश 1200 साल के कालखंड तक विदेशी विधर्मियों का गुलाम रहा, वो फिर से अपनी संस्कृति के आधार पर खड़ा हो सकता है, तो भारत एक ही है। इसलिए हमारी स्पिरिचुअल, हमारे देखिए शरीर की जरूरतें को पूर्ति करना और व्यक्ति को महत्व देना और समाज का शोषण करना, सृष्टि का शोषण करना, वो पश्चिम की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति पहले से ही दोहन की रही है। इसलिए ये संस्कार, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो बात है वो शिक्षा में आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको संकीर्णता से नहीं देखना चाहिए, उसको
सांप्रदायिक नहीं देखना चाहिए। जैसे कि भगवान रामचंद्र जी है, उसको कोई भगवान माने, बाकी धर्म के लोग नहीं माने, ठीक है, लेकिन आदर्श महापुरुष थे, भारत के थे, भारत की भूमि से जुड़े थे, भारत की मिट्टी से जुड़े थे, और जिस तरह से त्याग करने की क्षमता थी, परिवार की भावना थी, अनिष्टों का संहार करने का सामर्थ्य था, उस विषय तक आध्यात्म रखना चाहिए। हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि हमारे इस भगवान को ही माने, क्योंकि हमारी तो बहुत सारी कोटियां हैं भगवान को मानने की। हमारी परंपराओं में कितने भी सारे संप्रदाय, सारे धर्म, हम कहते हैं कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, हर एक धर्म में सत्य है, उसकी व्याख्यायित करने की बातें अलग है। हर धर्म अच्छा है, हर संप्रदाय अच्छा है, और सारे नदियों का प्रवाह समुद्र को ही मिलता है, ईश्वर को ही मिलता है। ऐसे भाव से अगर हम आध्यात्म की बात करें तो मुझे लगता है कि वो आज के लिए उपयुक्त है और विश्व के लिए भी आवश्यक है।